آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے، گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار سے نہیں کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ آج میں قرآنی آیات یا احادیث کی عبارت نہیں پڑھنے والا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تھوڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے، تو پہلے سے ہی معذرت کر رہا ہوں کیونکہ گزشتہ جمعہ جو ہمارے ایک شریف النفس با اخلاق عالم دین نے خطبہ دیا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے نام پہ خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ علماء بد اخلاقی کرتے ہیں اور بد اخلاقی کے جو انہوں نے پل باندھے اسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ لوگ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ، تو میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، چاہے عالم ہو یا جاہل، ہم بھی عالموں کے خلاف بولتے ہیں، بالکل بول سکتے ہیں اگر واقعی کسی کے اندر کوئی خرابی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن اس بندے نے قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف باتیں کی ہے، بعض احادیث بیان کی اور ان احادیث کا یہ مطلب بیان کیا جو آج تک کسی عالم دین نے بیان نہیں کیا ہوگا، اور اس کی حقیقت کیا ہے آج قرآن اور احادیث کے روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ آج لوگ عوام سے نفرت کر رہے ہیں، عوام کو دور کر رہے ہیں، انہیں جواری کہہ رہے ہیں، انہیں شرابی کہہ رہے ہیں، انہیں کبابی کہہ رہے ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں کہہ رہے ہیں، اور ان سے نفرت مت کرو، نفرت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس سے نفرت کرنی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 190 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والے اور زیادتی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 57 ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور شکی خوروں کو ناپسند کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہگار سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ چیز کہی جا رہی ہے وہ گناہگار ہیں یا نہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے نفرت مت کرو۔ اللہ نے سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور اگر کسی سے محبت کی جائے تو کیا اس سے کوئی سزا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک گناہ کرنے والوں کے بارے میں ہی تو بیان فرمایا کہ ان کو کیسے کیسے سزائیں دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے بارے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طریقے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، انتقام کو بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2414 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
यानी जो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों से नफरत मोल लेता है, उनसे नाराजगी मोल लेता है, तो अगर ये उनको नुकसान पहुंचाना चाहे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह की नाराजगी में लोगों की रजा का तालिब हो तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को उसके तकलीफ देने के लिए मुकर्रर कर देता है। आज इस बंदे ने जुआरी, शराबी, बेनमाजियों को खुश करने के लिए उलमाए किराम को टारगेट किया और उलमाए किराम को बदअखलाक कहा और ना जाने क्या क्या चीजें कहा। मैं आप हजरात के सामने ये नोट किया हुआ हूं। उन्होंने अखलाक के ताल्लुक से बड़े अच्छे अंदाज में बयान शुरू किया। सबसे पहले तो कहा कि अखलाक के बड़े वसी माना है और उसके बाद कहा कि अच्छी बात बोलने वाले में से हर एक बाअखलाक नहीं होते, उसमें से कुछ बदअखलाक भी होते। बिल्कुल सही बात। उन्होंने ये भी कहा जो अच्छे अंदाज में बात नहीं कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बदअखलाक है, बल्कि वो भी बाअखलाक हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बयान फरमाया कि किसी के एक दो या छोटी गलती पर उसे बदअखलाक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपने मुलाहजा किया और नहीं तो फिर वीडियो आप लोग एक मर्तबा देख लीजिए, तनकीदी जायजा उसका लीजिए कि इन्होंने छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके बदअखलाकी का लेबल लगाया है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि कुछ लोग जनाजे की नमाज सिर पे पढ़ते हैं और पल्लू झाड़ते हुए वापस आ जाते हैं, मिट्टी मंजिल नहीं करते हैं, यह बदअखलाकी है। किसी आलिम ने आज तक ये मतलब नहीं बयान किया है। जनाजा फर्ज़े किफाया है, कुछ लोग अगर पढ़ ले तो काफी होगा, सबके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। और जनाजे की जो नमाज पढ़ता उसके लिए एक कीरात सवाब है और जो जनाजे के साथ मिलती मंजिल भी देता उसको 2 कीरात सवाब है। तो देने वाले को सवाब मिलेगा, ना देने वाले को सवाब नहीं मिलेगा। इसमें अखलाक और बदअखलाकी की बात कहां से आ गई? और खुसूसन चूंकि शायद पिछले महीना का जुमा था, मैंने जो बयान दिया था और उसमें मैंने मुआशरे और सोसाइटी में फैली हुई बुराइयों के बारे में अपने दर्द का इजहार किया था और आप लोगों से कहा था कि आप लोग भी कमेटी बनाइए और जो लोग इन बुराइयों के अंदर मुलविस हैं उन लोगों के पास जाएंगे, जा करके प्यार मोहब्बत से पहले समझाएंगे। हमने पहले ही नफरत की बात की थी, हमने कहा था प्यार मोहब्बत से समझाएंगे और हमने एक मिसाल भी दी थी कि जैसे इससे पहले इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना करके सख्ती कर रहे थे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने खुद मेंबर से कहा था कि सख्ती कर रहे हो, ये टूटने वाला है और टूट ही गया। तो मैंने ये कहा था कि पहले आप लोग मोहब्बत से समझाइए, उसके बाद कहा अगर ये लोग नहीं मान रहे फिर भी मोहब्बत से समझाने के बाद भी तो इनका पूरी तरीके से बाइकाट कीजिए और बेनमाजियों के हम उलमा को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से जो बेनमाजी होंगे उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, शराबियों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और जो दहेज लेते हैं या तो गैर शरई जो काम करते हैं शादी ब्याह में उसका निकाह ना पढ़ाया जाएगा। जब उलमा एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक नमाजी लोग बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक लोग शराब छोड़ देंगे और इस तरीके से दहेज वगैरह छोड़ देंगे, इल्ला ये कि कोई छुपे छुपाए करेंगे। तो ऐसा करने से फायदा होता है कि नुकसान। इस अल्लामा और बाअखलाक शरीफुल नफ्स आलिम ने कहा कि ये सारी चीजें बदअखलाकी है, ये नफरत है और इससे दूर करने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक बात ये भी कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक में से ये था कि आप अगर किसी को कोई बुराई करते हुए देखते थे तो कहते थे कुछ लोगों को क्या हो गया है कि उनका नाक खाक आलूद हो जाए। बेशक सही बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो फिर आपने ये बात क्यों कही इस स्टेज में चढ़ करके कि अब तो उलमा इतराज करेंगे, मदरसे के उलमा की तरफ से भी इतराज आएगा, गांव के लोगों की तरफ से भी इतराज आएगा। आपने नाम क्यों लिया मेरे भाई? आपने इशारा क्यों किया मेरे भाई? आप खुद अखलाक सिखा रहे हैं और दूसरे के ऊपर बदअखलाकी का ठप्पा डाल रहे हैं और बदअखलाकी का मुजाहरा खुद कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक के ताल्लुक से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बेहुदा बातें करते थे, न किसी को गलत बोलते थे और ना लानत भेजते थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने उलमा के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें कही, क्या ये बेहुदा बातें नहीं थी? ये हम आपको कुछ कोड किए हैं, वो आपको बताएंगे। और इसी तरीके से उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक के बारे में कि उनको किसी काम में भेजा, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने लगे, अंसार के कुछ बच्चों को खेलते हुए देखे तो उनके साथ खेलने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको
उनके पास गए, कंधे पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के अनस ने देखा तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद बहुत अच्छी बातें कही कि नबी, उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटे डपटे नहीं, बल्कि कह के ठीक है जाओ वो काम करो। या अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं वो काम कर लूंगा। ये वाक्य तो बड़े अच्छे है और बड़े अच्छे अंदाज में कहा, लेकिन यहां से इसने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। इनके कहने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये मुआमला करते थे वो हर एक के साथ करते थे, अच्छों के साथ भी करते थे, बुरों के साथ भी करते थे। उन्होंने बहुत सारी हदीसें बयान की और हदीस के नंबर भी बयान किए और उसके बाद उलमा को ललकारने की कोशिश किए कि नोट कर लीजिए, आप तो इतराज नहीं करेंगे, आप तो सवाल नहीं करेंगे, हम ये दलील दे रहे हैं ताकि उलमा ही करें। उसमें बयान किया गया मेरे भाई, उसने जो बयान किया गया वो इतराज वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो गलत मतलब आपने लिया है वो इतराज की बात है। आपने किसी हदीस में ये बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ऐ अल्लाह मैं मिस्कीन की हालत में जिंदा रहना चाहता हूं, मिस्कीन की हालत में मरना चाहता हूं, मिस्कीन की हालत में उठ जाना चाहता हूं। आप मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे, मजबूरों से मोहब्बत करते थे, गरीबों से मोहब्बत करते थे। और कोई लौंडी आती थी तो हाथ पकड़ करके लेके घूमती जाती थी, जहां चाहती थी लेके चले जाते थे। और कोई पागल औरत भी आती थी, एक पागल औरत भी आई और आपको लेकर गली में लेकर गया और आपसे अच्छी अपने जरूरत की बातें की, इस किस्म की बातें की, तो इससे एतराज किसको है? लेकिन ये बात कह करके आप कह रहे हैं कि ये लोग तो कहते फला शराबी है, वो जुआरी है, तो पागल औरत की बात आपने शराबी से मिला दी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शराबी के साथ ऐसा मामला किया था? क्या वो लौंडी बेनमाजी थी? क्या वो लौंडी शराबी थी? क्या वो लौंडी कबाबी थी? क्या वो लौंडी बदकार और जनाकार थी? कहां की बात कहां फिट कर रहे हैं। बहरहाल हम आगे आते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6782 आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने जाती मामला में किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन जब अल्लाह की हुर्मतों को तोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए बदला लेते थे। तो अपने जात का मामला अलग है, नबी सल्लम के अखलाक हसना जात के मामले में, और दीन के मामले में कैसा है, जिनको बुनियाद बना करके इन्होंने बदअखलाक उलमा को साबित करने की कोशिश की है। हम अभी आपको हदीस के हवाले से बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ क्या मामला था। जरा उनके अखलाक भरे अल्फाज भी सुन लीजिए। हमें कहते हैं बार बार के ये उलमा से आवाम से नफरत करते हैं, उनको दूर कर रहे हैं, तो ये उलमा से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं और इनके मुंह से कैसे अखलाक भरे फूल झड़ रहे हैं। ये कहते हैं उलमा, एक हदीस बयान करते कहते हैं उलमा के लिए नसीहत है कि सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुल मिल करके रहता है। बेशक रहते थे, लेकिन उसका मतलब गलत निकाले हैं, वो बतलाएंगे। कहते हैं आज उलमा का हाल क्या है, मुआशरे में बुराई क्यों है, बेनमाजी क्यों है, जुआ और शराब आम क्यों है, गोया हम लोगों की वजह से है। हम उलमा को जो दावत का काम कर रहे हैं, घूम फिर करके लोग कर रहे हैं, और इन उलमा को हर महीना मैसेज भेज रहे हैं, पर्सनल मुलाकात होती है तब भी कह रहे हैं कि आओ मीटिंग है, हर मस्जिद में प्रोग्राम करेंगे, और फिर लोगों की कमेटी बना के जा जाकर के भी करेंगे। एक भी प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो रहे हैं, एक भी मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ये खुद उलमा से नफरत कर रहे हैं, उलमा से दूरी बनाए हुए हैं। आगे वो कह रहे हैं, इनके फूल जो निकल रहे थे मुंह से, मौलवी हजरात खुद को बड़का इमाम समझते हैं, बहुत बड़का मुफ्ती, बहुत बड़ा मौलाना अल्लामा समझते हैं, आवाम से नफरत करते हैं और आवाम भी आलिमों से नफरत करती है। क्यों? मैं कहता हूं आवाम हमसे नफरत नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आवाम से घुल मिल करके रहते हैं। लेकिन अगर कोई नफरत करते तो वो आपके दोस्त ही होंगे, आपके दोस्त होंगे जिसके साथ आप घुल मिल करके रहते हैं। आज आप कहते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं छूट रही है, सुनो, हराम काम में गुल, खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा वगैरह सब हराम है। ये वो मौलवी हैं जो आवाम के सामने गुल लगाएंगे, ये वो मौलवी हैं जो आवाम के सामने खैनी खाएंगे, जर्दा वाला पान खाएंगे। इनमें से बहुत सारे दूसरे मौलवी हैं जो बीड़ी और सिगरेट भी फूंकते हैं। कुछ ऐसे भी मौलवी हैं जो गुटखा ही करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक आलिम को एक मरतबा छुपाते हुए देखा तो मैंने देख करके मजाकन कहा कि अच्छा गुटखा है, तो नहीं नहीं नहीं। तो मैं कहा एक काम कीजिएगा, इस जुमा आप गुटके के फजीलत पर ही बयान दीजिएगा। तो गुटखा भी करते हैं, ये आवाम के साथ रहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे उलमा इन लोगों के साथ हो जाएं।
सारे उलमा इनके साथ हो जाएं और आवाम से ही नफरत करते हैं। और अभी आपको कुरान के हवाले से बताया कि अल्लाह ताला नफरत करता है या मोहब्बत करता है। बहरहाल आगे कहते हैं, हम लोगों के बारे में कह रहे हैं, हमने खुद को बहुत आला मर्तबा में फाइज कर लिया है कि हम बढ़ के अल्लामा हैं, हमारे जैसे आलिम कोई है ही नहीं। नहीं मेरे भाइयों, हम लोगों में से किसी ने कभी भी ये बात नहीं कही है। ये अलग बात है, आपने तो हम तमाम उलमा को बदअखलाक साबित कर ही दिया है। इसका मतलब आप खुद अपने आप को ऐसा साबित कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ओहो आलिम लोग एक एतराज करेंगे, और उसके बाद वो कौन सी एतराज? वो जो हदीस उन्होंने बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ घुल मिल करके रहते थे, और उसके बारे में ये कह रहा है कि मैं ही दोहरा देता हूं, ये आलिम ये एतराज करेंगे कि क्या ये आवाम सहाबा के बराबर हो गए? अच्छा, तो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि अगर ये आवाम सहाबा के बराबर नहीं तो क्या तुम नबी के बराबर हो गए? नहीं मेरे भाई, हम ये एतराज करेंगे ही नहीं। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल वो बात दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ घुल मिल करके रहते थे, लेकिन आपने इसका मतलब क्या निकाला? आगे खुद आप बयान कर रहे हैं। क्या ख्याल है? आवाम खुद बताइए। जो बड़का समझ रहे हैं, आवाम को दूर कर रहे हैं कि ये शराबी है, ये कबाबी है, ये जुआरी है, ये बेनमाजी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इससे दूरी इख्तियार किए बैठे हैं और अपने आप को आला अखलाक पर फाइज समझ रहे हैं। ये अखलाक नहीं, बद अखलाकी है। इसका मतलब इस बंदे ने खुद कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा किराम के साथ घुल मिल करके रहते थे, इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनमाजियों के साथ भी घुल मिल करके रहते थे, शराबियों के साथ भी, जुआरियों के साथ भी। ये मतलब इन्होंने निकालने की कोशिश की है, और हमें लानतान क्या है, हमें बदअखलाक साबित करने की कोशिश क्या है। आइए मैं आप हजरात के सामने सबसे पहले जो गुनाहगार हैं उनके साथ मिलकर रहना चाहिए या नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6692 है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना और बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की मिसाल ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाले और लोहार और भट्टी वाले की है कि आप अगर अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो उसकी मिसाल है जैसे आपने इत्र बेचने वाले के पास बैठा। हो सकता है कि आप इत्र खरीद लेंगे, अगर नहीं भी खरीदेंगे तो कम से कम इत्र की खुशबू आपको मिलने लगेगी। तो यह है नेक लोगों की सोहबत में बैठने का फायदा कि वहां से आप या तो नेक बन जाएंगे या तो नेकी के माहौल में रह करके बहुत कुछ आप सीख लेंगे। और बुरे लोगों की सोहबत में बैठने की मिसाल है जैसे आप भट्टी के दुकान में जाके बैठे, जो लोग लोहे को तपा करके छुरी चाकू ये लोग बनाते हैं, तो वहां अगर बैठेंगे हो सकता है कि चिंगारी वहां से निकल करके आपके कपड़े को जला दे, और अगर नहीं भी जलाएगी तो कम से कम उसका जो गंध है, जो लोहे का जो गंध है, वो आपको लगने लगेगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। तो ये जो गुनाहगार लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि नेककारों की सोहबत में आए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। और उलमा को ये नहीं कहा जा रहा कि तुम उनके सोहबत में बैठो, नेक लोगों की सोहबत में सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि तुम उनके साथ सोहबत में बैठो, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम नेक की सोहबत में बैठो। इसी तरीके से देखिए, ये जो कह रहे हैं कि उनकी सोहबत में बैठिए, अबू दाऊद हदीस नंबर 4336 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल में पहला जो नक्श और ऐब रूनमा हुआ और उसकी वजह से उनके ऊपर लानतें भेजी गई, उनके ऊपर अजाब वगैरह हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि इनके जो उलमा थे पहले तो लोगों को समझाते थे और नहीं मानते थे तो फिर दूसरे दिन उन लोगों के साथ ही बैठे हुए रहते थे, उनके मजलिस में बैठते थे, खाते पीते रहते थे उनके साथ। ये उलमा उसके मिसाक हैं। इस हदीस को ज़ईफ करार दिया गया है, लेकिन इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से जब इस हदीस के बारे में पूछा गया तो इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस हदीस के अंदर ज़ौफ़ है, लेकिन दिगर बहुत सारे शवाहिद हैं जिसकी वजह से ये सही है। और इसकी सबसे बड़ी शवाहिद तो नस्स शरी है, कुरान से है कि अल्लाह ने सूरतुल माइदा के अंदर बयान किया है कि काफिरों के नाफरमानों के ऊपर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई क्योंकि वो नाफरमानी का काम करते थे। तो बुरे लोगों के सोहबत में बैठने की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दे रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं बेनमाजी हैं, तो हमने बेनमाजी कह दिया तो हम बदअखलाक हो गए। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के उन्वान पर हमारे ऊपर यह ठप्पा लगाया गया। अब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। पहले सहाबा की
सुनते हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2622 है। बयान किया जाता है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज के सिवा किसी अमल के छोड़ देने को कुफ्र नहीं समझते थे। सहाबा किराम नमाज को छोड़ना कुफ्र समझते थे। अब आगे बढ़ते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1481 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक नमाज में गैर हाजिर पाया तो फरमाया, मैंने यहां तक सोचा कि किसी आदमी को लोगों की इमामत कराने का हुक्म दूं, फिर दूसरी तरफ से उन लोगों की तरफ जाऊं जो नमाज से पीछे रहते हैं और उनके बारे में हुक्म दूं कि लकड़ियों के गट्ठों से आग भड़काकर उनके घरों को उनके ऊपर जला दें। जो लोग नमाज में नहीं आते हैं, देखते हैं कि गैर हाजिर हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि मैंने ख्याल किया दूसरे को इमामत करने के लिए खड़ा करो और कुछ लोगों को ले जाकर के उनके घरों को आग लगा दो जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। शराबी के ताल्लुक से बता रहा हूं, हमने शराबी कह दिया तो कम बद अखलाक हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के नाम पे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4456 है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब के जुर्म में जूतों और खजूर के टहनी से 40 ज़रबे लगाते थे। समझ में आ रही है? हमने शराबी कह दिया तो बदअखलाक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि शराबी को लाया जा रहा था तो खजूर की टहनी और जूतों से मारते थे। हम ऐसा करते तो क्या फतवा देते मेरे भाई आप। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के ऊपर लान तान नहीं करते थे। हमने पहले ही कह दिया कि लान तान अपने जाती मामला में नहीं करते थे, लेकिन जब दीन का मामला हो, हुदूद का मामला हो और जिनके बारे में मैंने कहा था उसको इन्होंने मुद्दा बनाया। अब देखिए चोर के बारे में सही मुस्लिम हदीस नंबर 4408 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह चोर पर लानत करे, वो अंडा चुराता है तो उसका हाथ कटता है और रस्सी चुराता है तो उसका हाथ कटता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर के ऊपर लानत किया, ये बदअखलाकी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंडा और रस्सी चुराने वाले की भी हाथ काटा जाता है और आज भी सऊदी अरब में हाथ काटे जाते हैं, ये बदअखलाकी नहीं है। सूरह माइदा सूरह नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है उसका जो उन्होंने किया है। चोर का हाथ काटा जाता मेरे भाई, आप किसका साथ दे रहे हैं? मुआशरे और समाज में बुराई को दूर करने और खत्म करने की, या इसमें आप बुराई को बढ़ाना चाह रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। जुआ के बारे में सूरह माइदा सूरह नंबर 90 अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ऐ ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और बुत वगैरह और खुराक के तीर, ये सब गंदी बातें शैतानी काम है, सो उनसे बिल्कुल अलग थलग रहो ताकि तुम अलग हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुआ शराब वगैरह को क्या कहा? शैतानी काम, गंदा काम, इनसे दूर रहो तभी कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से जुआ के एक किस्म का जिक्र करते हुए इब्ने माजा हदीस नंबर 3763 में बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नर्दशीर चौसर, ये जुआ की किस्म है, खेला, गोया उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त और खून में डुबो दिया। आपने चोर के बारे में ये नहीं कहा, बल्कि हमने चोर कहा तो बदअखलाक ठहरा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 6779 है। साहिब बिन यजीद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के इब्तिदाई दौरे खिलाफत में शराब पीने वाला हमारे पास लाया जाता तो हम अपने हाथ, जूते और चादरें लेकर खड़े हो जाते और उसे मारते। आखिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आखिरी दौरे खिलाफत में शराब पीने वालों को 40 कोड़े मारे। और जब उन लोगों ने, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा कि इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है चोरी, क्यों शराब बढ़ रहा है, क्यों बेनमाजी बढ़ रहा है, यानी हमारी वजह से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं कि और जब उन लोगों ने मजीद सरकशी की और फिस्क व फुजूर किया तो 80 कोड़े मारे जाने लगे। यानी 40 कोड़े पहले मारते थे और मजीद सरकशी करने लगे तो 80 कोड़े मारे जा रहे हैं। इस हदीस से हमें क्या मालूम हो रहा है? इस हदीस से हमें यह मालूम हो रहा है मेरे भाइयों कि
आपको तो सख्ती करने का है गुनाह को रोकने के लिए, और उसके बाद और अगर वो लोग और ज्यादा बुराई फैल रही है तो और मजीद सख्ती करने की आपको जरूरत है, ना कि इस तरीके से। हालांकि तारीख शाहिद है, आप लोगों में से तकरीबन लोगों ने देखा है, उलमा जुड़े थे इससे पहले, और उसके बाद आवाम भी जुड़ी थी, नौजवान भी जुड़े थे, और जब दावत तबलीग का काम हो रहा था उस वक्त बुराई कम हो रही थी कि बढ़ रही थी? बुराई कम हो रही थी कि बढ़ रही थी? और जब वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे जब लोगों को खींच खींच के निकाला जा रहा था, सर का मुंडन कराया जा रहा था, उस वक्त इस मौलवी ने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि उसमें तो नेता वगैरह भी थे, कैसे कहता वो? लेकिन यहां टारगेट हम लोगों करने का, है किस किस्म की बदल। अरे भाई, गलती है तो बिल्कुल टारगेट करो, और अगर वाकई हमारे अंदर बदअखलाकी थे, आप तो अखलाकमंद थे, आप तो हमसे नफरत नहीं करते, हम तो आराम से नफरत करते हैं, आप तो माशाअल्लाह मोहब्बत करने वाले थे, आप आलिमों के पास आते, जबकि आपको बुलाया भी गया था, हमेशा हर महीना बुलाया जाता, इस मरतबा भी बुलाया गया था कि आप आइए, कैसे दावत तबलीग का काम करेंगे। आप आते और कहते देखिए दावत तबलीग का काम करा, अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका गलत, जबकि गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको तो अभी बता ही दिया कि हमने सिर्फ तो इतना ही कहा। और ये सजाएं कितनी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया, सहाबा इकराम ने दिया, अल्लाह ने देने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, इसने आखिर में एक बात ये भी कही कि क़यामत के दिन मीजान से सबसे भारी ना तो नमाज होगा, ना रोजा होगा, ना सदका तो खैरात होगा, बल्कि उस दिन सबसे भारी क्या होगा? अखलाक होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपने हदीस पढ़ी है, दुरुस्त बात है। लेकिन तिरमिज़ी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का पूछ होगा, नमाज दुरुस्त निकली तब दूसरे चीजों के बारे में सवाल होगा, आपके अखलाक के बारे में तभी सवाल होगा। ईसाइयों से ज्यादा अखलाकमंद अभी कोई नजर नहीं आएंगे आपको, हम में से भी बहुत सारे हैं, लेकिन मिन जुमला अगर देखा जाए तो अगर हमारी फीसद निकाली जाए उनकी फीसद, तो उनकी फीसद ज्यादा निकलेगी तादाद के हिसाब से अखलाक में। तो क्या अखलाकमंदी की वजह से सिर्फ चला जाएगा? पहले आपका तौहीद दुरुस्त होना चाहिए, तौहीद नहीं तो सारे अमाल खत्म। नमाज पढ़ना आपको पड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ा तो दूसरी चीजों के बारे में सवालात ही नहीं होंगे। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। इस्लाम की बुनियादी ने तुम्हारा घर ही नहीं बना है तो दूसरे चीजों के बारे में पूछ कहां से होगा? आप कहते हैं नफरत मत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत करने वाला ही कामयाब है, यही मोमिन है। और अल्लाह के लिए मोहब्बत से क्या मतलब है? हर एक जानता है, यानी जो तकवा और परहेजगार वाले हैं, नेककार लोग हैं, आप उनसे मोहब्बत कीजिए कि अल्लाह रसूल के फरमाबरदार हैं। और जो गुनाह का काम करते हैं, ये अल्लाह रसूल के नाफरमानी से नफरत कीजिए। तो अल्लाह के रसूल तो हमें नफरत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम तो इसे नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? मुसलमानों से जो लोग गुनाह कर रहे हैं तो उनसे भी नफरत की जाएगी, उसके गुनाह के बकदरे, उससे ज्यादा नहीं। हम भी तो वही कहते हैं कि भाई शराब, जुआ, ये वो चीजें छोड़ दो। कितने अगल बगल में बेनमाजी वगैरह हैं, गली कोचों से गुजरते हुए जब मुलाकात होती है तो हम उन्हें कहते हैं नमाज पढ़ो, हर चीज के बारे में कहते हैं। कौन नहीं कहता? तू अपने खुद नहीं कहता है और दूसरों के ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन, आखिरी हदीस बात बयान करके खत्म कर रहा हूं, यह सही बुखारी हदीस नंबर 1423 है कि कयामत के दिन अर्श इलाही के साये में सिर्फ 7 किस्म के लोग रहेंगे, और उसमें वो 2 किस्म के लोग रहेंगे जो अल्लाह से एक दूसरे से मोहब्बत, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर मुलाकात करते हैं तो अल्लाह ही के लिए, अगर जुदा होते हैं तो अल्लाह ही के लिए। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत होनी चाहिए, अपने जाती फायदे के वास्ते, जाती नुकसान के लिए नफरत नहीं। मेरे भाइयों, उम्मीद के बातें समझ में आ गई होगी। बड़े ही अदब और एहतराम से हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ खेल रहे हैं, जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो लोग ज़िना और बदकारी कर रहे हैं, जो औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह के वास्ते तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इसकी बहुत बड़ी बड़ी वजहें हैं, दुनिया की कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। एक दिन आपको मरना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरानी आयात की रोशनी में अइम्मा किराम ने, हमारी बात नहीं है, अइम्मा किराम ने कहा है कि बेनमाजी, अलग अलग फतवा बता दे रहा हूं, बेनमाजी में से किसी के बारे में कहा कि उसको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि वो काफिर हो गया है,
किसी के बारे में कहा कत्ल मत करो, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा दो, उसे जेल में डाल दो और वहीं पे वो मर जाएगा। किसी के बारे में कहा कि जनाजे की नमाज मत पढ़ो, किसी के बारे में कहा मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करो। ये हम अपनी तरफ से कर रहे थे, बदअखलाकी कर रहे थे। अल्लाह से दुआ करते कि मौला करीम सबसे पहले कहने वाले को बाद वो तमाम सुनने वाले मर्द और ख्वातीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।